So PLC is your programmable logic controller. Okay, as all of you know, to perform any industrial process in automatic manner, in automatic mode, so we need some controller, and this controller will uh, operate the sequence of logic, uh, कि किसके बाद क्या होना है, पहले कौन सा वाल्व खुलेगा, उसके बाद कौन सा वाल्व खुलेगा, उसके बाद कौन सा फैन अगर इंटरलॉकिंग में है क्या होगा। ये जो ऑटोमेटिक मैनर से जो सीक्वेंस ऑफ लॉजिक जो काम करेगा, ये जो है मेनली पीएलसी करता है। पहले जो है हम लोगों का पीएलसी नहीं था, मैनुअल वाल्व्स था। तो मैनुअल वर्क्स होने के कारण ये प्रॉब्लम होता था कि ऑपरेटर के ऊपर प्लांट 100% डिपेंडेंट है। ओके, हाँ, दिस इज कॉल्ड आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, all of you know to for process we need some input as well as after undergoing the process the plant will generate some output, the process will generate some output. Okay, input are the user requirement and output are the end result. Input means हमको क्या चाहिए, क्या देना है, कौन सा वाल्व को खोलना है, कौन सा एसओबी को ऑपरेट करना है, कौन सा पुश बटन को ऑपरेट करना है ताकि वो हमारा लाइट ग्लो हो जाए। ठीक है, और अगर इस चीज को प्रोसेस में हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमको उसके लिए कंट्रोलर चाहिए, जो कि एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, और उसका फीडबैक जो है वो रिटर्न आता है, और फीडबैक जैसे ही उसका मिलता है तो वो कंट्रोलर क्या है, ऑटोमेटिक एक आउटपुट जनरेट करता है। और फीडबैक हमको इसलिए चाहिए ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई, जो मैंने इनपुट दिया था वो काम किया है। ऐसा पहले ऐसा होता था कि हमने इनपुट दिया और वो रिजल्ट आउटपुट हुआ या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? दैट इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। लेकिन इन केस ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल, व्हेन वी गिव एन इनपुट through a controller, automatic controller, it will give a feedback to the system and generate the result. Okay, this is the basic fundamental things before we proceed in detail of PLC regarding its wiring, input wiring, output wiring, hardware, field wiring. So these are the basic things which, without knowing all these things, you cannot understand the next slides. Okay, so this is the IPO cycle is clear to you. I will give you one field example with a transmitter so that you can understand how this IPO cycle is working and how we are interrelating this IPO cycle with PLC. Okay. Okay, sir. So this is a basic loop of IPO cycle. Okay, you can see that in this controller, in this loop, there is one transmitter, there is one IPO to converter, and there is one final control element, which is your control valve. Okay, so first the transmitter. Suppose there is a control valve in the line, which will uh, measure some flow or some pressure of that line. So to measure the pressure or flow of that line, we have installed one transmitter. We have installed one transmitter. Suppose we are having a pressure transmitter or flow transmitter installed in a flow line to operate the control valve to regulate the flow on that process line. We have to install one flow transmitter or that or a pressure transmitter, whatever it is. So the pressure according to the pressure of that line, the pressure transmitter will read the pressure value of that line. Okay, and accordingly the final control element, is in series with that line, will open or close its valve opening to regulate the pressure or flow. Okay, and the controller, when the transmitter, you can see the transmitter will read the pressure or flow, and it will give a 4 to 20 milliampere process value of that line. And here is a set point, SB means set value, or MB is manipulated value. Suppose some pressure is 10 kg set over there. Whenever this transmitter read the 10 kg pressure process value, means when these two are matching,
when these two match, it will generate a value output from this controller. So this controller will generate a output and it will go to the I2P converter. Okay, this works on the principle of Flappel logic system. Okay, as soon as this 4 to 20 milliampere comes to this I2P converter, so as per the demand, the control valve will open, okay, or close, whatever it is. Clear? Okay, sir. Okay. When this control valve will open or close as per the requirement of this process loop, so it will generate a feedback signal again to the transmitter. Okay, कि भाई हाँ अभी हमारा जो है 10 kg प्रेशर है, हमको अभी क्या है 8 kg करना है, तो 8 kg करना है मतलब यहाँ पर सेट पॉइंट में 8 दे दिए, यहाँ पर जैसे 8 दे दिए तो यहाँ से प्रोसेस वैल्यू, यहाँ से मैनिपुलेटेड वैल्यू जो है निकला, आईटीपी में गया, कंट्रोल वाल्व थोड़ा कम हुआ और 8 kg प्रेशर डेवलप हुआ। जैसे ही ये प्रेशर यहाँ पर फीडबैक आया, हाँ ट्रांसमीटर से अभी ये दोनों का मैचिंग हो गया, तो जैसे ही दोनों का मैचिंग हो गया तो ये कंट्रोल वाल्व वहाँ पर स्टैग्नेंट हो गया, मतलब फिक्स्ड हो गया। ठीक है, जब तक ये मैच नहीं होगा ये सेट पॉइंट और प्रोसेस वैल्यू, तब तक ये कंट्रोलर आउटपुट जनरेट करते रहेगा I2P से और कंट्रोल वाल्व तब तक एडजस्ट होता रहेगा। नाउ क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ यस স্যার বল रहा था कि जब কন্ট্রোলারে যখন সেট পয়েন্ট ভ্যালু ওভার হয়ে যায়, ভাবুন স্যার আমার যে সেট পয়েন্ট ভ্যালু যে দিয়েছিলাম সেটা থেকে ওভার হয়ে গেল, তো স্যার যে আউটপুটে জেনারেট করবে না তারা ना 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 ये कभी ऐसा नहीं होता है कि सेट पॉइंट, सपोज तुमने सेट पॉइंट 100% दिया है, 100% मीन्स 100% मतलब ये वाल्व 100% ओपन होगा। ठीक है, हेलो। सो जैसे 100% जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक ये ट्राई करते रहेगा, इसको खोलते रहेगा कंट्रोल वाल्व को। ऐसा कभी होता है कि एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम है, तुमको 110 मिल गया है? नहीं so that is not possible। सेट पॉइंट जो है वो क्या ह्यूमन देता है कि व्हाट इज आवर डिमांड, व्हाट इज द प्रोसेस रिक्वायरमेंट, क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या प्रोसेस वैल्यूज होना चाहिए, क्या वाल्व ओपनिंग होना चाहिए, वो कौन करता है तय? वो हम तय करते हैं। सो सेट पॉइंट विल बी डिसाइडेड बाय ह्यूमन फॉर दैट पर्पस ओनली, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्रोसेस वैल्यू सेट पॉइंट को क्रॉस करके चला जाए। मतलब वो एग्जाम, मैंने एग्जाम वाला जो एग्जांपल दिया 100 में तुमको कभी 110 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जितना भी अच्छा पेपर लिख लो वो कभी आता ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिक लूप अभी तुमको क्लियर है आईपीओ साइकिल का? हाँ सर। कोई डाउट हाँ है? सर, ठीक है। ठीक है सौरभ, और ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, सर एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मैनिपुलेटेड, एमबी का फुल फॉर्म क्या है? मैनिपुलेटेड वैल्यू। मैनिपुलेटेड मींस ये जो तुम्हारा प्रोसेस वैल्यू है, दिख रहा मेरा कर्सर, दिख रहा है आपको? हाँ। और ये जो मेरा सेट पॉइंट है, इसमें तो एडजस्टमेंट हो रहा है ना। जैसे ये 100 है तो ये 100 हो रहा है 99.9, 99.8, ये कोशिश कर रहा है कि सेट पॉइंट के पास जाने के लिए। तो जब ये एकदम मैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेटेड वैल्यू, मींस द कंपैरिजन बिटवीन दिस प्रोसेस वैल्यू एंड द सेट वैल्यू। ओके ओके, so now this is our the basic definition of PLC, what is programmable logic controller। ये थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर भी तुमको जानने के लिए जरूरी है। PLC is a solid state computerized industrial controller that performs discrete or sequential logic in a factory environment। अभी जो मैंने बताया कि डिस्क्रीट मतलब तुम्हारा डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है 0-1 लॉजिक, और सीक्वेंशियल लॉजिक मतलब किसके बाद क्या होगा। तो ये पीएलसी एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर है जिससे हम कोई भी प्रोसेस को सीक्वेंशियली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लॉजिक है, सीक्वेंसिंग है, टाइमिंग है, काउंटिंग है, अरिथमेटिक है, ये सारी चीज, एनालॉग टू डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, वेरियस टाइप ऑफ मैसेज, ये सब पीएलसी के अंदर जो है ये इसका अलग अलग फंक्शनिंग है और ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा हिस्टोरियल बैकग्राउंड। ठीक है, 1959 से चालू हुआ था फर्स्ट नॉन प्रोग्राम सॉलिड स्टेट कंट्रोल सिस्टम बिल्ड बाय एलन ब्रेडली। एलन ब्रेडली ने 1959 में सबसे पहला जो है वो क्या बोलेंगे उसको, तब हम सॉलिड स्टेट कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। ओके, दैट इज नॉट एट द टाइम पीएलसी, दैट इज द सॉलिड स्टेट कंट्रोल सिस्टम। ओके, मींस इट्स वर्क एज ए ऑटोमेटिक बट इट डज नॉट फंक्शन, सब तरह का फंक्शनिंग नहीं होता था
इतना स्कैन टाइम नहीं था, इतना आयो नहीं था, इतना जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आउटपुट जो भी एफिशिएंसी है उतना नहीं था। उसके बाद 1968 में आया पीएलसी वर डिजाइन्ड बाय बेडफोर्ड एसोसिएट्स लेटर नोन एज मॉडिकॉन। मॉडिकॉन ने 1968 में पहला पीएलसी अपना बनाया। 1969 में फर्स्ट पीएलसी वाज डेवलप्ड बाय मॉडिकॉन। मॉडिकॉन ने उसको और थोड़ा डेवलप किया उसमें। इट वाज यूज्ड बाय जनरल मोटर्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्टली रिलेज। कॉस्टली रिलेज को हटा के इसने इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके उसने पहला जो है फर्स्ट इकोनॉमिक पीएलसी बनाया। और उसके बाद 1972 में मॉडिकॉन इंट्रोड्यूस लैडर लॉजिक बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर कंपैटिबल पीएलसी। उसके बाद पीएलसी में माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो तुम्हारा जो प्रोसेसिंग है वो और भी फास्ट हो जाए। अभी क्या है, स्कैनिंग कितने सेकंड में होता है, सारे आयोक्स का स्कैनिंग जैसे तुम देखोगे 0.02 सेकंड, इतने सारे स्कैनिंग किसको कहते हैं मालूम है कौशिक? सर हाँ सर, पीएलसी जब हम ये प्रोग्राम जो हम दिया है उसको रीड करने के लिए इसको स्कैन टाइम होता है, जो स्कैन टाइम उसको पीएलसी को रीड करेगा, जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया है वो समझने के बाद। ठीक है, तुमको मालूम है, लेकिन पूरा तुमको कंफ्यूज मतलब पूरा क्लियर नहीं है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। पीएलसी का फर्स्ट इनपुट से लेके सोच लो, एक पीएलसी में 3000 आयोस है, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, सो पीएलसी का फर्स्ट इनपुट से लेके 3000 मतलब लास्ट जो आउटपुट है वो मतलब फर्स्ट इनपुट टू लास्ट आउटपुट को रीड करने में जितना टाइम लगेगा पूरा लूप्स को, दैट इज कॉल्ड द स्कैन टाइम। ओके, दैट इज द स्कैन टाइम। ओके, after that in 1982 larger PLC up to 8192 IOs become available, 8952, and 2000 plus 2000 plus के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारा चीज आ गया है। और जो है हमारा जो है प्रोसेस जो है पीएलसी कंट्रोलर जो है वो सारे जो है और भी मॉडर्न हो गए और भी स्मार्ट हो गए। क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ मैं। पीएलसी का फंक्शन तुम लोग तो सबको मालूम है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले जा रहा हूँ क्योंकि जब पीएलसी चल रहा है तो स्टार्टिंग से बोलना अच्छा है। एक होता है सीक्वेंस कंट्रोल, दूसरा होता है एडवांस कंट्रोल। तो सीक्वेंस कंट्रोल का काम होता है कन्वेंशनल रिले। देखना तुम्हारा पीएलसी में रिले लगा होता है पीछे आउटपुट में। हाँ, वो रिले जो है रिले, हाँ, कोई भी पीएलसी का देखो आउटपुट में तुम्हारा रिले लगेगा, ठीक है। और रिले लगता है पीएलसी का सेफ्टी के लिए। ओके, मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। ये जो रिले है, ये रिले हो गया, फिर काउंटर हो गया, टाइमर हो गया, जैसे डिले टाइमर तुमने लगाया 5 सेकंड बाद वो वाल्व खुलेगा। ओके, ये सब जो है ऑटोमेट मैनुअल जितने भी है ये सारे जो है ना तुम्हारे सीक्वेंस कंट्रोल में आते हैं। ओके, दिस आर कॉल्ड सीक्वेंस कंट्रोल। अच्छा, तो एडवांस कंट्रोल में क्या है, जैसे अरिथमेटिक फंक्शन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। ओके, सोच लो कोई एक एड्रेस है I013118, सपोज दिस इज द एड्रेस। ये क्या है तुम्हारा, कौन सा प्लांट में हो, तो एमबीएफ में हो ना सिंटर में हो? सर मैं एमबीएफ में हूँ सर। एमबीएफ में, एमबीएफ में सोच लो तुम्हारा गैस क्लीनिंग प्लांट, जहां पर गैस क्लीनिंग प्लांट है। जीसीबी में जो तुम्हारा जो ब्लास्ट फर्नेस गैस आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, आ रहा है ना, ब्लास्ट फर्नेस से जीसीबी से क्लीन होके फिर तुम्हारा स्टोव में जा रहा है प्योर गैस, और थोड़ा फ्लेयर स्टैक में चल जा रहा है। ओके, रीयूज फॉर ओके, जो और कुछ बर्न हो जा रहा है। तो ये जीसी गैस क्लीनिंग प्लांट में जो तुम्हारा गैस क्लीनिंग, हाँ गैस क्लीनिंग, हाँ गैस क्लीनिंग प्लांट का फंडा मालूम है ना, जीरो वेलोसिटी होता है। जब गैस अंदर आता है जाके डायरेक्ट मारता है, वहां पर जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है नीचे गिर जाता है। ओके, तो मैं रेसिपी में जब ब्लास्ट फर्नेस से गैस आ रहा है डास्ट कजर से वो ज्यादा सा डस्ट नीचे गिर जाता है और ऊपर जो डस्टी गैस है वो ऊपर आके सैचुरेटर में आता है। एकदम, अभी ये जो ब्लास्ट फर्नेस गैस जो आ रहा है तुम्हारा सोलो डस्ट कैचर में, उसके लिए सपोज एक वाल्व है, ऑटोमेटिक वाल्व है। वो वाल्व का इंफॉर्मेशन वो एड्रेस है जो मैंने बोला I03, जो मैं अभी बोला था, वो एड्रेस है सपोज। तो ये एडवांस कंट्रोल क्या करता है, वो एड्रेस मतलब वो इंफॉर्मेशन हैंडल करता है, भाई ये चीज कहाँ के लिए है, वो कंट्रोलर को बताता है। अच्छा, ये गैस क्लीनिंग जो है ये गैस डस्ट कचर का जो है वो इनलेट बीएफजी गैस का एंट्री जो है उसका ये कंट्रोल वाल्व है।
या फिर इसका एमओवी है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स, ये सारे चीज इसमें आते हैं। इंटीग्रल मतलब प्रोसेस को एकदम धीरे 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 बढ़ाना, डेरिवेटिव मतलब कोई उसमें डिस्टरबेंस है तो उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। ये सारी चीज जो है उसमें कंट्रोल लूप का ट्यूनिंग वगैरह सारे जो है पीआईडी ट्यूनिंग्स वगैरह बोलते हैं, या फिर सर्वो मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, ये जो जितने हैं डिस्क्रीट जितने भी चीज है, ये सारे जो है एडवांस कंट्रोल जो है इसके अंदर में आता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, ओके सर। फिर आता सर है सर्वो हाँ बोलो। सर्वो मोटर से, सर्वो मोटर जो लॉजिक को जो है ना, जो हम लोग स्टॉक रोड में जो सर्वो मोटर जो लॉजिक जो स्टॉक जो काम करता है, वो सर्वो मोटर लगा रहता है ना स्टॉक रोड में। हाँ स्टॉक रोड में, हाँ स्टॉक रोड जो लिफ्ट होता है, ठीक है। हाँ उसमें वो सर्वो मोटर रहता है क्या उसमें ना? हाँ सर। सर्वो है श्योर। सर अभी वो पहले मैंने ब्लास्ट फर्नेस जो एमबीएफ 1 में नहीं, अभी 2 में लगाया है। 1 में जो था पूरा वो हाँ डीसी पूरा, मोटर था। हाँ वही बोलो डीसी मोटर था, क्योंकि मेरा समय में जो था वो डीसी, अभी क्या वो चेंज हो गया? वैसे 1 नंबर में जैसे था वैसा, या 2 नंबर में सर्वो मोटर लगा है, इंडक्शन मोटर, सर्वो इंडक्शन मोटर लगा है। अच्छा अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वक्त में तो सर्वो मोटर नहीं था, वो डीसी मोटर था, राइट। मतलब वो पुराना वाला जो है एमबीएफ, पुराना वाला जो है। एकदम एकदम मनोज सिन्हा जहाँ पर है, मनोज सिन्हा था अभी ओवरऑल इंचार्ज। हाँ एकदम। अच्छा, तो फिर आता है ये जो वाइटल कंट्रोल में से एक फाइनल जो है वो उसको बोलते हैं हम सुपरवाइजरी कंट्रोल। भाई ये सारी चीज ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हम एड्रेस दे रहे हो ठीक से जा रहा है या नहीं, सारे चीज का एक सुपरवाइजर होता है, उसको बोलते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल। इसका क्या काम है? इसका काम है प्रोसेस मॉनिटर, प्रोसेस को मॉनिटर करेगा, और कोई डेविएशन होगा तो अलार्म जनरेट करेगा, और क्या करेगा, फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स करेगा, और फिर मॉनिटरिंग करेगा। कोई फॉल्ट आए तो इंडिकेशन देगा, इवेंट लिस्ट आता है, देखना ट्रेंड्स वगैरह होता है तुम्हारा। अगर तुम सीमेंस के जो तुम्हारे है उसमें अगर देखोगे तो ये सारे जो स्कैडा है, स्कैडा के ऊपर आता है। और उसके बड़ी बात, इंटरफेसिंग विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ इंटरफेसिंग यही करता है। RS-232, RS-485 जो है केबल, 485। केबल जो है इंटरफेसिंग केबल। और उसके बाद प्रिंटर, एस की इंटरफेसिंग, फैक्ट्री ऑटोमेशन नेटवर्क, लैन वैन, ये जो जितने सारे चीज आते हैं ये सब सुपरवाइजरी कंट्रोल के ऊपर आते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट? यस यस। अब है पीएलसी टाइप। ओके, टाइप्स ऑफ पीएलसी। टाइप्स ऑफ पीएलसी हो गया तुम्हारा, एक मॉड्यूलर हो गया और यूनिटरी हो गया। मॉड्यूलर में आता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और यूनिटरी मतलब शू बॉक्स टाइप, छोटा पीएलसी। ऐसे जैसे राइस मिल हो गया, सोच लो राइस मिल में ज्यादा आयोस का जरूरत नहीं होता है, तो उसमें एक यूनिट। कॉम्पैक्ट टाइप। सर कॉम्पैक्ट टाइप क्यों होता है? वही ना जो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी होता है, वही यूनिटरी पीएलसी बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट छोटा छोटा भाई, ज्यादा आयुष का जरूरत नहीं। देखो राइस मिल में एक बॉयलर का जरूरत होता है तुम्हारा, ये है ना, तुमको अगर मालूम है तो एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अच्छा, स्मॉल में होता है तुम्हारा 128 आयोस, और उसका मेमोरी होता है 2 किलोबाइट्स। दिखाई दे रहा है स्लाइड? हाँ सर। ओके। अच्छा, मीडियम में होता है तुम्हारे 4000 से 8000 आयोस, और इसका मेमोरी होता है 32 से 256 KB। इसमें तुम्हारा फाइल फंक्शन है, अरिथमेटिक फंक्शन है, पीआईडी फंक्शन है, सब एस की सपोर्ट है, सब आता है मीडियम में। और जो लार्ज टाइप ऑफ पीएलसी है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सपोर्ट, लैन सपोर्ट, फास्ट स्कैन टाइम, रिडंडेंट होता है, और उसका 8000 से 12000 आईओस होता है, और उसका मेमोरी मेमोरी 1 MB, 10। 1 MB या फिर 1024 KB के आसपास होता है, ठीक है। ये है 3 कैटेगरी है, ठीक है। एज पर प्लांट रिक्वायरमेंट, जैसे तुम्हारा प्लांट में बहुत ज्यादा बड़ा प्लांट है तो तुमको लार्ज पीएलसी चाहिए, सोच लो वहां पर है सेंचुरी एक्सक्रेशन, वहां पर मीडियम टाइप का चाहिए, या फिर सोच लो बासुकीनाथ है, वहां पर स्मॉल चाहिए, या फिर यूनिटरी जो है वो चाहिए, ठीक है। ये सारे डिपेंड करता है कि तुम्हारा आयोस क्या है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ये है पीएलसी का कुछ ब्लॉक डायग्राम, इस तरह का दिखता है। ये सबको तुमको ये मालूम है, फिर भी मैं जस्ट एक बार रिकॉल कर लो। इसका एडवांटेज, फास्ट स्कैन टाइम, इंटेलिजेंट आईओ, सुपरवाइजरी कंट्रोल, प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी, स्मार्ट कम्युनिकेशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज फील्ड प्रोग्रामेबल बाय यूजर, इट स्कैन्स मेमोरी एंड आईओ इन ए predetermined manner, it provides error checking and diagnostics, it has redundant capabilities, remote access। ओके, ये एक पीएलसी का ओवरव्यू है। इस तरह का है क्या तुम्हारा प्लान में?
सर ए वाला तो ए वाला नहीं है, ये तो पहले अच्छा, बोले जो भी हो एक ए कॉमन टाइप वाला ए का। वाला है सर। अभी जो कर्सर दिखा रहे हैं, ए वाला हाँ, ये तो कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी है। अच्छा, एक कॉम्पैक्ट टाइप इस तरह का एक पीएलसी सोच लो, एक ओवरव्यू डायग्राम है तुमको बेसिक क्लियरेंस के लिए, ठीक है। ये पीएलसी का आर्किटेक्चर, ओके, इस तरह का आर्किटेक्चर तुम लोग को मालूम है, फिर भी मैं एक बार लेके जा रहा हूँ डिटेल में जाने के लिए। अभी तक मैं वायरिंग में आया नहीं, इसके बाद मैं वायरिंग में जाऊंगा। तो ये इनपुट मॉड्यूल होता है, इसमें तुम्हारा इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होता है, ठीक है, एनओएनसी कॉन्टैक्ट, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोलेशन या फिर इंट्रिंसिक बैरियर, ओके। और ये होता है इंटरफेस मॉड्यूल, इंट्रिंसिक बैरियर, ऑप्टिकल आइसोलेशन, ठीक है, इसको इंटरफेसिंग मॉड्यूल नहीं बोलते। ये है इनपुट मॉड्यूल, और ये है तुम्हारा एक ऑप्टिकल आइसोलेशन, ये भी एक ऑप्टिकल आइसोलेशन है। मतलब बाहर का फील्ड और अंदर का फील्ड में एक आइसोलेशन है, ऐसा नहीं है कि बाहर का कोई ऐसे अननोन कुछ। हेलो, द इनपुट मॉड्यूल सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो इसमें हम बेसिक्स तुम्हारा जो भी इनपुट्स होते हैं, एनओएनसी कॉन्टैक्ट, जो भी इनपुट्स है, मैं अभी तुमको बताऊंगा क्या क्या इनपुट्स होते हैं। तो ये आइसोलेशन बैरियर है, ताकि तुम्हारा बाहर का कोई ऐसे अनवांटेड फॉल्ट्स के कारण पीएलसी जो है वो ट्रिप ना हो जाए, डैमेज ना हो, जिसका इंटरनल सर्किटरीज जो है वो खराब ना हो जाए। और उसी तरह से है ये आइसोलेशन मॉड्यूल आप तुम्हारा आउटपुट मॉड्यूल्स के पहले, ठीक है। दो तरह का ऑप्टिकल आइसोलेशन दिया जाता है। ये तुम्हारा वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट है, लोड आउटपुट, एक पावर सप्लाई होता है। तुम्हारा जो पीएलसी है वो कितना वोल्ट का पावर सप्लाई, मतलब उसका पावर सप्लाई इनपुट कितना है? वहाँ 110 वोल्ट सर। 110 वोल्ट, ओके। और फिर ये होता है तुम्हारा प्रोग्रामिंग डिवाइस, और ये होता है तुम्हारा प्रोग्रामिंग मतलब जिससे तुम स्कैडा के साथ इंटरफेसिंग करके तुम उसको प्रोग्राम, ये जस्ट बेसिक एक आर्किटेक्चर है, ओके। ये है इनपुट डिवाइसेस में आता है तुम्हारा पुश बटन, लिमिट स्विच, थंब स्विच, थंब व्हील स्विच, लेवल स्विच, फ्लो स्विच, और भी है। और इसमें आता है तुम्हारा मोटर्स आउटपुट डिवाइस में, सोलेनॉइड वाल्व्स, एलईडी डिस्प्ले, हीटर कॉइल, लैंप। ये कुछ बेसिक्स मैंने लिया है इनपुट और आउटपुट का। हाँ, तुमको पता चले कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद जब डिटेल में जाएंगे उसमें सब कुछ रहेगा। अब आता है पीएलसी वायरिंग, जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसका जो मेन ये है, बेसिक है, ये यही है, ठीक है। तो पीएलसी वायरिंग के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? इनपुट और आउटपुट वायरिंग, दो तरह का वायरिंग होता है, ठीक है। कौशिक कुछ और सौरभ कुछ मालूम है पीएलसी वायरिंग्स के बारे में? सर थोड़ा थोड़ा मालूम है वैसा। 24 वोल्ट लूप वोल्टेज देते हैं हम लोग, अच्छा, उसी हिसाब से। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले इनपुट वायरिंग सुन लो। ये जो सपोज ये तुम्हारा ये जो ब्लॉक में जो दिखा रहा हूँ मैं, अभी इनपुट वायरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये मेरा जो है ये पीएलसी है, ओके। ये पीएलसी में ये एक एसएस है, ठीक है, और ये X0 है, दिखाई दे रहा है? ओके। एसएस क्या होता है? एसएस को बोलते हैं हम, हर एक पीएलसी में देखना रहेगा, हर एक जो इनपुट जो भी टीवी रहेगा उसके ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो कांटेक्ट है उसको बोलते हैं एसएस, मीन सोर्स सिंक, ठीक है। और ये जो है X0 है, ये जो है सबसे पहला कांटेक्ट है, इनपुट कांटेक्ट, ओके, ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? सर ये पीएलसी में मिलेगा तो? हाँ, पीएलसी में बोल रहा हूँ मैं। पीएलसी जो है, पीएलसी का जो इनपुट वायरिंग है, ठीक है। मतलब सर पीएलसी में या फिर इनपुट मॉड्यूल में? हाँ, सर ये जो ड्राइंग आप बता रहे हैं पीएलसी में या फिर इनपुट मॉड्यूल में? इनपुट मॉड्यूल में, पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल का बात कर रहा हूँ मैं। पीएलसी के अंदर जो इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल का जो सबसे टॉप वाला जो टीपी है ना, जो तुम्हारा टीपी है, टीपी में सबसे ऊपर वाला जो है वो एसएस है, सोर्स सिंक, ठीक है। और उसके बाद X0, X1, X2 करके तुम्हारा सारा टीपी जो है, सोच लो 8 उस तरह से आते रहेगा, 8 चैनल 16 चैनल जितना भी है उस तरह से वो लंबा होते आते रहेगा, ठीक है। ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी डिटेल में अभी तक गया नहीं, ठीक है, क्लियर है? तो सपोज एज X0 जो इनपुट है, इसमें हम एक पहले सोच लो पुश बटन लगाए, ठीक है। ये पुश बटन के साथ सोच लो कोई एक बल्ब ग्लो करना है, ठीक है, किसी एक बल्ब को हम ग्लो करेंगे, क्लियर है यहाँ तक?
ओके, तो अभी ये जो पीएलसी होता है, पीएलसी दो तरह का होता है। एक होता है डिजिटल पीएलसी। मैं डिजिटल पीएलसी का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें इनपुट जो होता है तुम्हारा 24 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट का होता है। ओके, और जो दूसरा पीएलसी है उसमें तुम्हारा लाइन न्यूट्रल फेज 110 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, क्लियर है सर ये? सर 24 वोल्ट डीसी रहता है और 110 वोल्ट वो भी डीसी। हाँ, 110 वोल्ट का भी 110 वोल्ट तुम्हारा वो जो इसमें रहेगा पीएलसी में एसी, एसी वहाँ 110 वोल्ट एसी। ओके, तो ये तो मैन 24 वोल्ट तो 24 वोल्ट 24 वोल्ट। 24 वोल्ट डीसी। अच्छा मतलब तुमको अभी तक क्लियर नहीं है। मतलब अगर सोच लो तुम्हारा पीएलसी 110 वोल्ट का है। ओके, पीएलसी का जो पावर अप 110 वोल्ट का या फिर 220 वोल्ट का है, लेकिन तुम्हारा जो इनपुट मॉड्यूल है, ओके, हाँ इनपुट मॉड्यूल अगर तुम्हारा पीएलसी अगर डिजिटल पीएलसी हुआ तो इनपुट मॉड्यूल का जो सोर्स सिंक रहेगा वो आइदर 24 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट का होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ঠিক আছে ठीक है। अच्छा, স্যার বেসিক্যালি কি হচ্ছে 110 ভোল্ট যে ইনপুটটা আমরা দিচ্ছি ওটা আমার পিএস বা পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কনভার্ট না হয়ে না 24 না ভোল্ট না ডিসি না হ্যাঁ একদম এক্স্যাক্টলি ডিজিটাল টাইপের যে হ্যাঁ ডিজিটাল টাইপের যে পিএলসি গুলো আছে, তুমি যখন 110 ভোল্টের পিএলসি তে যখন সাপ্লাই দিচ্ছ, ওর ভিতরে ট্রান্সফরমার আছে, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, তারপর রেকটিফায়ার আছে, এগুলো করে যখন ও আউটপুটটা বের করছে না, ওটা ও 24 ভোল্ট বের করছে। ওটা তো স্যার পিএস এ বের করছে না মানে পাওয়ার সাপ্লাই কনভার্ট হচ্ছে না বা এসএমপিএস এ কনভার্ট হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে আছে তো সব ওইখান সিস্টেম। থেকে হুম, হ্যাঁ একদম ঠিক ওইখান থেকে ওটা ইনপুট মডিউলে যাবে তাই তো ইনপুট একদম 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 ঠিক। ঠিক আছে, ওই যে এসে ঢুকছে ওটাকে বলছি আমি, যেখানে এসে ঢুকছে ওটাকে বলছি আমি সোর্স আর সিঙ্ক। ওকে, এসএস। এবার ফান্ডাটা রাখো, আমি তোমাকে বলছি। Let we are selecting a PLC of 24 volt or 0 volt. Now if we give 24 volt to the input power source of a PLC, suppose अभी यदि एखाने একটা 24 volt दी, अगर हम लोग इसको 24 volt देते हैं तब तो मेन फंडा क्या है, अगर हम इसको 24 वोल्ट देंगे तो हमको ना एन पोटेंशियल डिफरेंस ईपीडी जो है वो एकदम मेंटेन करना है, तभी जाके ये जो कांटेक्ट है ये आगे बढ़ेगा। मतलब अगर ये पुश बटन को हम जब प्रेस करेंगे, मतलब एनो को जब हम एनसी करेंगे तो इससे एक सिग्नल फ्लो होगा x0 में। एक ये जब प्रेस करेंगे तभी सोच लो एक हमारा बल्ब जलना चाहिए। ओके, आउटपुट में, या फिर एक मोटर स्टार्ट होना चाहिए सपोज फॉर एग्जांपल। ये कब स्टार्ट होगा, कब ये सर्किट कंप्लीट होगा, जब सपोज इन केस ऑफ हम इधर 24 वोल्ट देते हैं सोर्स सिंक में, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तभी इसका कंप्लीट होगा जब इसका आउट मतलब इनपुट में ये पुश बटन का जो अदर सेंड है वहां पर जब हम 0 वोल्ट देंगे। जब हम ये 0 वोल्ट यहाँ पर आएगा, एक दूसरा बस बार से हम यहाँ पर इसको 0 वोल्ट, इसको यहाँ पर 0 वोल्ट ऑब्वियसली तुम्हारा दूसरा बस बार से यहाँ पर हम देके रखेंगे, और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तभी जाके ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, और ये जो सिग्नल है ये x0 का टीवी में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो द 0 वोल्ट विल ट्रेवल टू x0 इनपुट टू द इंटरनल सर्किटरी। अब देखो इसका जो इंटरनल सर्किटरी है इसमें दो तरह का, जैसे x0 के साइड में दो तरह का ये तुमको डायोड दिखेगा। these are the optocoupler device. Okay, these device are called optocoupler device, optocoupler electronics device. As soon as this signal will go through x0, it will go to, this is the positive side and this is the negative side. So again this is the positive side and this is the negative side. अगर ये सिग्नल इस तरह से जाएगा इधर, तो तुम्हारा जो नेगेटिव साइड वाला है जो डायोड है, ऑप्टोकपलर डिवाइस है, वो क्या होगा, तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, मींस ऑन, और ये वाला जो होगा ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, मींस ऑफ। ओके, तो ये जैसे हमारा फॉरवर्ड वाइज हुआ तो इसका अक्रॉस में एक रिसीवर रहेगा। ओके, दिस रिसीवर विल रिसीव द सिग्नल connected in series to the optocoupler device, receive the emitted signal from the forward wise optocoupler, and in turn it will on the PLC address x0, और ये क्या करेगा, ये x0 को ऑन कर देगा। ठीक है, as soon as ये PLC एड्रेस हमारा जो है वो हमारा ऑन हो जाएगा। PLC एड्रेस ये x0 कब ऑन होगा, जब हम यहाँ पर 24 वोल्ट देंगे इन केस ऑफ
ये जो सोर्सिंग हमने सिलेक्ट किया है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हम तब ये करेंगे कि यहाँ पर बस बार से हमको एक 0 वोल्ट सप्लाई देंगे और फिर हमने ये पुश बटन को प्रेस करेंगे और तब ये सिग्नल फ्लो यहाँ से होगा। ये दो तरह का ऑप्टो कपलर डिवाइस इसी के इंटरनल सर्किटरी जो बोर्ड है उस बोर्ड में देखना लगा हुआ रहता है। जो बोर्ड का एलईडी ग्लो होगा मींस दैट इज योर फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस होगा। एंड इन सीरीज ऑफ दैट ये रिसीवर विल देयर, ये रिसीवर जैसे ये रिसीव करेगा, ये एमिटेड लाइट को रिसीव करेगा, इट विल एक्टिवेट और ऑन द X0 चैनल, ये चैनल को ये ऑन कर दे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? হ্যাঁ স্যার, যখন আমার ইনপুট মডিউলে যখন আমার এলইডি যখন গ্লো করবে তখন আমার বুঝতে পারবে যে আমার ওই যে ডিভাইসটা আমার ইনপুট আমি কি, হ্যাঁ এই চ্যানেলটা আমার ইনপুটটা পিএলসি কন্ট্রোলার রিড করেছে। ওকে, ঠিক আছে। একটা ফল্ট এলো, তার পাথরুতে যদি প্রপার গ্রাউন্ডিং না থাকে, কি ধরো গ্রাউন্ডিং যদি ফেল থাকে তাহলে দিস উইল দে উইল গো থ্রু দ্য মিন্স উইকেস্ট পাথ, হ্যাঁ, এন্ড শর্টেস্ট পাথ। তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে, এই ইলেকট্রনিক্স এর যে এই ডিভাইস গুলো আছে খুব সফিস্টিকেটেড ডিভাইস, এগুলোকে সবথেকে আগে এগুলো খারাপ করে দেবে। ফর দ্যাট ইন্টারফেসিং মডিউলস আর implemented in that input and PLC. থ্যাংক ইউ স্যার, আমার থ্যাংক ইউ স্যার, এটা প্রবলেম ছিল, আমার কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে গেল। Clear is it? Okay, and now this type of wiring is called your sync wiring. In এবার ধরো যদি এখানে আমি 0 ভোল্ট দিতাম, in source sync, if we put a 0 volt, if you give a 0 volt, then to maintain the potential difference we have to give a 24 volt on this side, in this end of push button. Okay, and the procedure is same. When this will be 24 volt and this will be 0 volt, in that case this diode optocoupler device will be your forward bias and this will be your reverse bias. In that case this LED will glow, and the same procedure this receiver will receive the emitted signal from this optocoupler device, and again this X0 input of that module will be activated. That type of procedure or the process is called your source wiring. Okay, ঠিক আছে। দুটাই মেইনলি দু টাইপের হতে পারে, হয় আমরা সিঙ্গল ভোল্টে 24 ভোল্ট দিতে পারি একদম, এবং পুশ বাটনে 0 ভোল্ট দিতে পারি, বা আদারওয়াইজ আরেকটা হয় যেমন 0 ভোল্ট আমি সোর্সে দিলাম আর পুশ বাটনে আমি 24 ভোল্ট দিচ্ছি। একদম একদম ঠিক আছে, এখানে অবধি ক্লিয়ার আছে? ওকে, সো এবার আমরা একটা এক্সাম্পল নিই। সাপোজ আমাদের কাছে একটা ভাইব্রেশন সেন্সর আছে। ভাইব্রেশন সেন্সর, সাপোজ উই আর হ্যাভিং এ ভাইব্রেশন সেন্সর অফ পিজোইলেকট্রিক টাইপ, ঠিক আছে। তো ওই ভাইব্রেশন সেন্সরে দেখবে যে কোনো সেন্সর যদি দেখো তুমি, if you see any sensor, suppose you are having a one sensor, so there will be a so before I start the sensor, I will just tell you that there are 3 type of sensors categorized. Sensor are categorized in 3 types. One is your PNP, okay, another is NPN, and third one is your universal. All sensors are categorized in these 3 basic category. In PNP type, the sensor will be activated with 24 volt. Okay, the output of the sensor will be 24 volt, and in case of NPN the output of the sensor will be 0 volt, and in universal type the outputs are 24 volt and 0 volt both. Okay, NP, hello, yes sir, clear? All sensor are categorized, electronic sensor are categorized in these 3 types. Okay, suppose we are having a vibration sensor of piezoelectric type, and in that case there are 3 wires. Suppose तुम्हारे पास एक वाइब्रेशन सेंसर, तुम्हारे जो इंजीनियर है सीनियर्स जो है उन्होंने बोला कि भाई ये वाइब्रेशन सेंसर को तुम्हारे एक मोटर के बेस में लगाना है, तो तुमने उसको पहली बार देखा ये सेंसर है भाई इसमें 3 तार है ओनली, हाँ, वन इज योर ब्राउन, ब्लू एंड अनदर वन इज व्हाइट, 3 कलर्स। ओके, या फिर हो सकता है तुम्हारा ब्लैक है, कोई भी कलर है, लेकिन बेसिकली ब्राउन और जो ब्लू होता है वो अगर तुम्हारा ब्राउन है तो उसमें सोच लेना उसमें 24 वोल्ट है आएगा, इनपुट आएगा, और अगर 24 वोल्ट अगर इनपुट आ रहा है तो वो किस तरह का ये हो गया तुम्हारा, किस तरह का वायरिंग में आता है वो? PNP, हाँ, PNP, अगर 24 वोल्ट दैट इज द PNP,
अगर 24 वोल्ट इनपुट हम इसको दे रहे हैं, दैट इज योर सोर्स वायरिंग. ओके ओके, दिस इज द 24 वोल्ट कमिंग, दिस इज योर सोर्स वायरिंग. ओके, हेलो, कुछ कुछ नॉइज आ रहा है. ओके, और जो ब्लू वायर है उससे तुम्हारा 0 वोल्ट आएगा. ओके, 0 वोल्ट इनपुट जा रहा है सेंसर में, और जो ब्राउन वायर है उससे वो तुम्हारा 24 वोल्ट जा रहा है. तो अगर आउटपुट वायर अगर तुम्हारा व्हाइट है तो तुम्हारा वो सोच लो वो जो आउटपुट वायर है वो तुम्हारा जो है X0 में आ जाएगा. ठीक है, X0 में अगर आउटपुट वायर अगर तुम्हारा यहाँ पर 0 आ रहा है, ओके, तो तुम्हारा सोर्सिंग में कितना वोल्ट जाएगा? 24 वोल्ट. ओके, आउटपुट में अगर तुम्हारा 0 वोल्ट दे रहे तो सोर्सिंग में तुम्हारा 24 वोल्ट आ रहा है. ओके, इन केस ऑफ ये हो गया तुम्हारा एनपीएन टाइप का ऑफ डिवाइस. इन केस ऑफ पीएनपी अगर हो जाएगा तो जस्ट आउटपुट वायर में तुम्हारा जो मैंने आउटपुट वायर बोला वहां पर तुम्हारा 24 वोल्ट आएगा. ओके, और पीएनपी टाइप में तुम्हारा जो आउटपुट का जो सेंसर होता है उसका कलर ब्लैक होता है, और एनपीएन में जो होता है वो बेसिकली व्हाइट होता है. ओके, तो अगर तुम्हारा आउटपुट में 24 वोल्ट आ रहा तो सोर्सिंग में तुम्हारा 0 वोल्ट आना चाहिए. और अगर मॉड्यूल का वो जो मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल तुम सिलेक्ट करोगे ना, वो सिलेक्ट अगर ऐसा करना है कि वो जो मॉड्यूल तुमने सिलेक्ट किया है उसमें सारा जो है 24 वोल्ट से आना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई X0 में हमने ये लगाया 24 लगा दिया और X1 में हमने 0 लगा दिया, तो ये जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सोर्सिंग का जो वोल्टेज है वो एक ही है. हेलो, सर, ठीक है, हेलो, कुछ नॉइज आ रहा है ना? ये नॉइज আসছে. ओके, तो इन केस ऑफ यूनिवर्सल अगर है कोई यूनिवर्सल तुम्हारा पास सेंसर है तो उसमें 4 वायर्स होते हैं, 2 पावर के लिए. ये जो मैंने बताया था ना, ब्राउन और ब्लू वायर्स जो है एनपीएन या फिर पीएनपी में, दैट आर कॉल्ड पावर वायर्स. और आउटपुट में यूनिवर्सल में क्या होता है, 2 आउटपुट होता है, एक 0 वोल्ट और एक 24 वोल्ट का. ठीक है, तो अभी सपोज तुम यहाँ पर एक ये देख रहे हो, मेरे पास ये आउटपुट वायरिंग का एक डायग्राम है. यहाँ पर ये है C0 Y0 C1 Y1 दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर, दिखाई दे रहा है? हाँ सर. C0 is the common, Y0 is the output one, C1 is the again common, and Y1 is the output one of that output module. Okay, so सपोज मुझे एक काम करना, अगर तुमको आउटपुट वायरिंग करना है तो सबसे पहले 2 चीज बेसिक तुमको 2-3 चीज जान लेना है. क्या है, तुमको चेक द लोड ऑफ द, सपोज तुमको एक लैंप ग्लो करना है. ओके, एक लैंप ग्लो करना है तो तुमको सबसे पहले देखना है चेक द लोड ऑफ लैंप बिफोर कनेक्ट टू द पीएलसी. मतलब ये जो आउटपुट मॉड्यूल में तुम जो लैंप कनेक्ट करोगे इसका लोड कितना है, मतलब एम्पियर कितना एम्पियर का ये लाइट है जिसको तुम ग्लो करना चाह रहे हो. ओके, और उसके बाद क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ द आउटपुट मॉड्यूल टर्मिनल. ये जो टर्मिनल है इसका कैपेसिटी कितना है, मतलब अगर ये सोच लो इससे तुम इसका ये आउटपुट से सोच लो 0.1 एम्पियर इसका कैपेसिटी है, तो इससे तुम कोई ट्रांजिस्टर ही ऑपरेट कर सकते हो. अगर सोच लो ये सारा मॉड्यूल का कैपेसिटी है 10 एम्पियर, तो मतलब इससे तुम सब कर सकते हो. मीन्स एक रिले भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब इससे तुम कोई मोटर ऑपरेट कर सकते हो, तुम कोई एसओ भी ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये जान लेना जरूरी है कि ये जो मॉड्यूल है इसका आउटपुट मॉड्यूल का कैपेसिटी कितना है. ओके, ये 2 चीज चाहिए. सर सप्लाई हमेशा 24 वोल्ट है यहाँ पर. हाँ हाँ हाँ, आउटपुट में सप्लाई हमेशा 24 वोल्ट रहता है. आउटपुट में, हाँ हाँ, आउटपुट में क्या बोल रहे हो, सप्लाई 24 वोल्ट रहता है. यहाँ पर भी सीओ में जो 24 वोल्ट जा रहा है. हाँ 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 हाँ, ये नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. जो तुमने जो अभी जो क्वेश्चन पूछा ना वो मैं बता रहा हूँ तुमको. इसमें 2 तरह का होता है, सोच लो. एक ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होता है जो है तुम्हारा यूज्ड फॉर हाई स्पीड पल्सेस, डिस्क्रीट पल्सेस. जैसे इससे हम कोई सर्वो मोटर ऑपरेट करेंगे. सोच लो तुम्हारे पास सर्वो मोटर स्टॉक प्लॉट का बताया, या फिर स्टेपर मोटर है. ठीक है, इसको अगर इस आउटपुट से ऑपरेट करना है तो ये जो है इसका जो है ना, ये तुम्हारा स्पीड पल्सेस होगा ट्रांजिस्टर टाइप, मतलब इसका रेटिंग 0.1 0.2 एम्पियर का होना चाहिए. ठीक है, और रिले टाइप अगर होगा, सोच लो मोटर या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्टर या फिर एसओबी
जो करना है, तो आउटपुट मॉड्यूल का पूरा रेटिंग जो है तुम्हारा कम से कम मिनिमम 10 एम्पियर तक होना चाहिए, तभी जाके वो मोटर ये करेगा। नहीं तो क्या होगा, ये डायरेक्ट ये पूरा मॉड्यूल जल जाएगा, क्योंकि मोटर का लोड इतना ज्यादा होता है, ये मॉड्यूल पूरा जला देगा। और इंटर्न अगर तुम्हारा इंटरफेसिंग अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा पीएलसी भी डायरेक्ट डैमेज हो सकता है। ओके, अभी जो तुमने अभी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये आउटपुट मॉड्यूल कितना इसका होता है, मॉड्यूल में कितना सप्लाई जाता है, तो ये तुम्हारा 24 वोल्ट का होता है या फिर 220 का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। एक में तुम 24 वोल्ट भी दे सकते हो और 220 वोल्ट भी दे सकते हो आउटपुट में। ओके, हेलो, हाँ सर, हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक अभी तक? মানে কিছু ডাউট আছে তো আমাকে বলতে পারো। স্যার বলছি ওর রেটিং তাহলে আলাদা হবে আউটপুট মডিউলটা, আউটপুট মডেলটা রেটিং তাহলে আলাদা হবে, মানে আমি যেটা 220 ভোল্ট দেবো সেটা রেটিং আলাদা হবে, মানে আলাদা টাইপের হবে। আর 24 ভোল্ট কোনো দরকার, তুমি যদি এই যে আউটপুট মডেল যদি একটা 10 এম্পিয়ারের নিয়ে নাও, 10 এম্পিয়ার যদি ওর রেটিং থাকে, ক্যাপাসিটি থাকে, ঠিক আছে, 10 এম্পিয়ার ক্যাপাসিটি থাকলে তুমি তো ওখানে 24 ভোল্টও দিতে পারবে আর তুমি 220ও দিতে পারবে, অসুবিধা তো কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমি কেন বললাম তোমাকে 10 এম্পিয়ার, তুমি আমাকে কোশ্চেন করতেই পারো, স্যার ধরুন একটা মোটর আমার ওখান থেকে রান করাবো, সে হয়তো কারেন্ট নিচ্ছে 160 এম্পিয়ার, হতেই পারে না, হ্যাঁ 160 এম্পিয়ারের কারেন্ট ড্র করবো, আমি অপারেট করাবো, আপনি বলছেন 10 এম্পিয়ারের ক্যাপাসিটি এটা আমি এখানে মডিউলে লাগিয়ে দিলাম, এখান থেকে আমি যদি অন করি তো আমার মডিউলটা এমনি চলে যাবে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলছি ডাইরেক্ট তো স্যার মোটর দেবো না, তাহলে একদম 160 এম্পিয়ার না 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 না, সেই কেসে হবে না। এবার দেখো আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, যাচ্ছি আমি তোমাদের কোশ্চেন গুলোতে যাচ্ছি। নাও কানেক্ট ওয়ান ওয়্যার টু দ্য ইনপুট মডিউল অফ ল্যাম্প ফ্রম আউটপুট। সাপোজ আমি একটা এই আউটপুট মডিউল থেকে একটা ল্যাম্পে একটা কানেকশন করলাম। এবার যখনই আমি এখানে 24 ভোল্ট সাপ্লাই দিলাম কমন দিন C0 তে, ওকে, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, যখনই আমি দিলাম it will travels to Y0 from C0, this 24 volt will come to the this output channel 1 via logic program, via ladder logic program, which I will tell you in our next slides. Okay, through ladder logic program this 24 volt will travel to this Y0. Suppose when I am giving a 24 volt supply from this common, when I give a 24 supply to this one, okay, and this will travel to this Y0. So to glow that lamp you have to give you have to maintain a potential difference. So 0 volt have to give on the another end of the lamp to maintain the potential difference. So when you will give a 0 volt from this side, and when this 24 volt will travel from this side, then this lamp will glow. Now you just see the this diagram. Hello, ये डायग्राम देखो, ये देखो यहाँ पर जैसे 24 वोल्ट दिया और सपोज यहाँ पर देखो जैसे 24 वोल्ट आया ना, ये 24 वोल्ट X0, तो ये होते हुए तुम्हारा एलईडी ग्लो हो गया। अब ये जो 24 वोल्ट है, ये 24 वोल्ट जो प्रोग्रामिंग के थ्रू ये कॉमन में आ गया, ये कॉमन में आके Y0 में ट्रेवल किया। Y0 में ट्रेवल करने के बाद ये तब भी ग्लो नहीं होगा जब तक ये आउटपुट वायरिंग में एक हम 0 वोल्ट यहाँ से जब तक नहीं देंगे, 0 वोल्ट का पास बार से यहाँ पर নিউট্রাল যখন অন না দেব, हाँ 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 নিউট্রাল না তখন বাল্ব গ্লো করবে। শুনতে পাচ্ছি না, খুব বেশি আওয়াজ হচ্ছে। স্যার বলছি যে যখন আমরা নিউট্রাল দেব বা কমন সাপ্লাই না তখন তো বাল্ব গ্লো হবে না, একদম গ্লো করবে না। এই দেখো না, এই কেসটা দেখো, তুমি এই নেক্সট কেসটা দেখো সোর্সে, এই ধরো এটা ধরো 24 ভোল্ট আমার এখানে যাচ্ছে, সাপোজ এখানে 24 ভোল্ট দিলাম, এই 24 ভোল্ট এখান থেকে ঘুরে এসে X0 তে রয়ে গেল। ওকে, এবার এই X0 থেকে আমাকে তো এই লাইটটা গ্লো করতে হবে। সো এই 24 ভোল্টটা আমার এখানে C0 তে আসবে, এই C0 থেকে এসে ল্যাডার লজিক প্রোগ্রাম যখন স্যাটিসফাই হবে তখন এই Y0 তে আসবে। যখন Y0 তে আসবে, Y0 তে এসে লাইটের আমার একটা এন্ডে এসে রয়ে গেল, কিন্তু এই লাইটটা তখনই জ্বলবে যখন এখান থেকে একটা 0 ভোল্ট যখন তুমি এখানে সাপ্লাই দেবে, পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা যখন তোমার মেইনটেইন হবে তখন এই লাইটটা গ্লো হবে। ওকে, ক্লিয়ার আছে? একদম স্যার। তাহলে তোমার ইনপুটের সঙ্গে আমি আউটপুট ইন্টারফেসিং তোমাকে এই বাল্বটা জ্বালিয়ে আমি দেখালাম যে কিভাবে হচ্ছে সোর্সের জন্য। ইন আনাদার কেস, আরেকটা কেসে দেখো যখন 0 ভোল্ট যাবে, মানে এখান থেকে 0 ভোল্ট সাপ্লাইটা আসছে আউটপুটে, এই এক্স চ্যানেল এসে ঢুকলো, এখান থেকে তোমার এই 0 ভোল্ট এখানে কমনে গেল, আর এখানে ল্যাডার লজিক প্রোগ্রামিং এর পরে Y0 তো এলো,
y0 তে এসে এখানে 0 ভোল্ট এসে দাঁড়িয়ে গেল। যতক্ষণ না তুমি এখানে 24 ভোল্ট যতক্ষণ না 24 ভোল্ট দেবে আরেকটা এন্ডে, ততক্ষণ তোমার এই আউটপুটটা গ্লো করবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? স্যার, হ্যাঁ স্যার বলছি, আমি যেটা বলছি সিঙ্ক সিঙ্ক ওয়্যারিং এর সঙ্গে যে কোনো ওয়্যারিং আউটপুট ওয়্যারিংটা হতে পারে তো? কিসের সঙ্গে? সিঙ্ক ওয়্যারিং যেটা আছে, মনে ধরুন এসএসএ আমি 24 ভোল্ট দিচ্ছি, হ্যাঁ, তার আউটপুট, তার করসপন্ডিং যে আউটপুট ওয়্যারিংটা, সেটা যেটা খুশি হতে পারে, 24 ভোল্টও দিতে পারি, 0 ভোল্টও হতে পারে না? না তুমি 24 ভোল্ট আউটপুট দিচ্ছ তো? না, 24 ভোল্ট দিচ্ছ ইনপুটে। সিঙ্ক ওয়্যারিং করছি স্যার, ইনপুটে সিঙ্ক ওয়্যারিং আছে আমার। সিঙ্ক ওয়্যারিং বলছো, আচ্ছা বলো সিঙ্ক ওয়্যারিং এ। আমার ইনপুটে সিঙ্ক ওয়্যারিং আছে, ঠিক আছে স্যার। আউটপুটের ওয়্যারিংটা যে কোনো একটা হতে পারে। সিঙ্ক তুমি ইনপুটে দিচ্ছ, এই যে দেখো এটা তো তোমার ঘুরে আউট কত আসছে, 24 আসছে, আসছে না? এবার এবার আউটপুটে তোমার এখানে হচ্ছে খেলা, যে এখানে তুমি যে আউটপুটটা 24 ভোল্ট বের করছো না, এখানে 24 ভোল্ট বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, এবার ওখানে তুমি কি টাইপের সেন্সর লাগাবে, এনপিএন লাগাবে না পিএনপি লাগাবে? ঠিক আছে, আমি হ্যাঁ মানে তুমি বলছো যে আমি ইনপুটে এখানে 24 ভোল্ট দিলাম সিঙ্ক ওয়্যারিং এ, x0 তে 24 এসে দাঁড়িয়ে গেল, তো তুমি বলছো এখানে আমি কি দেবো, আউটপুটে কি দেবো? আউটপুটে কি দেবো? তো আউটপুটে তোমার তো এই 24টাকেই আমাকে এখান দিয়ে সার্কুলেট করাতে হবে না, তো এখানে তোমাকে 24 দিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, তো 0 যদি তুমি দাও, এখানে যদি 0 দাও তাহলে তোমার এখানে এখানে যদি 0 দাও, ঠিক আছে, 0 ভোল্ট সাপোজ তুমি এখানে দিলে, তো এখানে 0 এলো তোমার। ঠিক আছে, কিন্তু 0 ভোল্ট দিলে তো হবে না, তো 0 ভোল্ট দিলে তো তোমার এই জিনিসটা আসছে, সোর্স ওয়্যারিং থেকে আসছে। সিঙ্ক ওয়্যারিং যখন হবে তাহলে তোমাকে 24 ভোল্ট, সেই জন্য তো দুটো আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি করা আছে, যে একটা সিঙ্কের জন্য 24 ভোল্ট, একটা সোর্সের জন্য 24 ভোল্ট। তুমি বলছো যে আমি সিঙ্কের 24 ভোল্ট এখান থেকে দিলাম, কিন্তু আমি আউটপুট ওয়্যারিং এ তোমার 0 ভোল্ট দেবো, সে তো পসিবল হবে না, কেন কি এই ইনপুটটাই তো আউটপুটে যায়। আইপিও সাইকেলটা দেখলে না, ইনপুট প্রসেস আউটপুট, এই ইনপুটটাকে প্রসেস করলে, যে ইনপুটটাকে প্রসেস করলে সেটাই তো আউটপুট বেরোবে তোমার। এখানে 0 দিলে তোমার কি করে হবে, 0 দিলে তো এটা প্রসেস হবে না, বুঝতে পারছো? একদম মানে স্যার এই যে আউটপুট ওয়্যারিংটা বলছেন, এটা বাল্ব জ্বালানোর জন্য, তাই তো? সাপোজ একটা সাপোজ একটা বাল্ব জ্বালানোর জন্য বলছি, আমি এখনো অব্দি ডিটেলে যাইনি, আমি মোটর এখনো চালিয়ে দেখাইনি। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এবার দেখো, এবার আমি তোমাকে বলছি যে সাপোজ আমি এখানে একটা সলিনয়েড ভালভ অপারেট করব এই ইনপুট থেকে y1, দেখা যাচ্ছে? এটা ভুলে যাও, এবার এটা ভুলে যাও, আমি একটা সলিনয়েড ভালভকে অপারেট করব। ঠিক আছে, এবার সলিনয়েড ভালভকে অপারেট করলে আমি সাপোজ এই 24 ভোল্টকে আমি এখান থেকে লুপ করে এখানে দিয়ে দিলাম, এই কমনটাকেও অ্যাক্টিভেট করে দিলাম, যতগুলো কমন থাকবে সব 24 ভোল্ট থেকে লুপ করে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবার হ্যাঁ ল্যাডার লজিক প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে ও যখন ও কমান্ড দেবে y1 এ আসবে, y1 এ 24 ভোল্ট পাবো, দিয়ে হ্যাঁ 4 ভোল্ট 21 পেলে হ্যাঁ নিউট্রাল যদি কানেক্ট করা আছে ভালো হবে। একদম এক্স্যাক্টলি কে কৌশিক বলছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ রাইট, একদম এক্স্যাক্টলি ওটাই বললো একদম। তো সাপোজ এখানে ধরো একটা সলিনয়েড ভালভ আছে, সলিনয়েড ভালভটাকে আমি অপারেট করবো, একটা এসওবি কে অন করবো। ঠিক আছে, তো এসওবি ধরো আমার, এবার এসওবি কে অন করতে গেলে কি হবে, এসওবির আগে আমাকে অ্যাম্পিয়ার রেটিংটা জানতে হবে। যদি এসওবির অ্যাম্পিয়ার রেটিং যদি এই মডিউলের রেটিং এর থেকে বেশি হয়, তাহলে মডিউলটা কাজ করবে না, করবে কি? হ্যালো স্যার একটু ওয়েট করুন স্যার, ওয়েট করুন স্যার। হ্যালো, একটু ওয়েট করুন, রাস্তা জাম হয়ে গেছে, কি জাম হয়ে গেছে? রাস্তায় গাড়ি জাম হয়ে গেছে, মানে হর্ন বাজাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা কি রোডের উপরে থাকো নাকি? মানে হ্যাঁ স্যার, এখন ও আচ্ছা হাই রোড না স্যার, রাস্তার মেইন রোড তো পাশেই। আচ্ছা, ওই যে ইয়ে ইন্দাতেই? না স্যার, ইন্দাতে না, আমাদের শ্রীকৃষ্ণপুর মন্দির তলা বলে ওই স্যার। কোথায়, মন্দিরতলা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার তো কন্টিনিউ করবো? হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার, continue। এবার ধরো y1 এ আমি একটা এসওবি লাগাচ্ছি। ঠিক আছে,
এখানে এই इनपुट আমি একটা एसओबी लगाओ सोच लो এবার सपोज सोचो कि ये y1 में जो हम एसओबी लगाएंगे वो एसओबी का जो रेटिंग है वो 6 एम्पियर है, ठीक है 6 एम्पियर है। तो ये 6 एम्पियर जो है इस ये एसओबी को हमको ऑपरेट करना है। तो इन दैट केस आई विल कनेक्ट ए रिले, यहाँ पर मैं एक रिले लगाऊंगा, ठीक है। सपोज 6 एम्पियर का अगर ये एसओबी है तो मैं यहाँ पर एटलीस्ट एक 10 एम्पियर का रिले लगाऊंगा। इस रिले का एम्पियर रेटिंग इस एसओबी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिले का जो कॉन्टैक्ट है, जैसे ही मेरा यहाँ पर 24 वोल्ट आया, तो लो 24 वोल्ट आने से ये जो है 24 वोल्ट यहाँ से थ्रू हो गया, ठीक है। थ्रू होने के साथ साथ ये 24 वोल्ट जैसे ये रिले में गया तो ये रिले का एक जो है एनओ या फिर एनसी कॉन्टैक्ट जो है वो लैचिंग हो गया, लैच होके रह गया। जैसे लैच हो गया तो वो एसओबी का इनपुट में आके रह गया, एसओबी का इनपुट में आके रह गया, लेकिन एसओबी ऑन नहीं हुआ जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं हुआ। जब भी मुझे यहाँ से आइदर 0 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट दूसरा एंड से अगर मिलेगा तभी जाके ये एसओबी तुम्हारा ऑपरेट होगा। ये मैं डीसी एसओबी का बात कर रहा हूँ, एसी नहीं, ओके डीसी एसओबी होता है, ठीक है। इन अदर केस सोच लो, इन केस ऑफ अगर तुमको यहाँ पर रिले से आउटपुट अगर तुमको 110 या फिर 220 मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 110 या फिर 220 आके बैठ गया यहाँ पर रिले का आउटपुट में, और जब तक तुम्हारे यहाँ से ये न्यूट्रल नहीं मिलेगा या फिर न्यूट्रल जब तक यहाँ से तुम्हारा नहीं सेटिस्फाई होगा तब तक ये एसओपी जो है ये ऑपरेट नहीं होगा, ओके। ओके हेलो या ना कोई डाउट है तो पूछो मुझे। স্যার আমাদের পিএলসি প্যানেলে ওই আমাদের দেখবেন ডিও কার্ডের আগে মানে ডিওর আগে একটা রিলে থাকে, রিলের রেড লাইট যখন জ্বলে তখন বুঝতে পারি যে আমার রিড করেছে প্রোগ্রাম। একদম একদম ডিও কার্ডে যখন তোমার রিলেটা যখন হাই হবে তখন ভাববে যে ওখান থেকে আউটপুট বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, ওই 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 রিলেটা যখন চলা সিগন্যাল আসে মানে আমার কি আমার সিস্টেম আমার কাজ অ্যাক্টিভ আছে। সিস্টেম অ্যাক্টিভ আছে মানে ওই রিলের অ্যাড্রেসে তুমি যখন সার্চ করবে তখন তুমি জানতে পারবে যে ও একটা কোনো জায়গায় একটা আউটপুট জেনারেট করছে। আউটপুট জেনারেট করছে মানে আউটপুটটা চলে যাচ্ছে ডিও, ডিজিটাল আউটপুট বেরিয়ে চলে যাচ্ছে তোমার কোনো একটা ফিল্ডের ডিভাইসে, ও ওটাকে তোমার কন্টিনিউয়াস অপারেট করছে, ঠিক আছে। স্যার ওটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স বলছি, আমার কিছুদিন আগে প্রবলেম হয়েছিল, তো পিএলসি থেকে এখন থেকে একটা মানে সিস্টেমকে হুটারকে পুশ করলে মানে হুটারটা বাজে, ঠিক আছে। পুশ করলে কোনটা কি পুশ করলে বাজে? মানে কন্ট্রোল রুম থেকে পুশ করলে আমাদের পাম্প হাউসের হুটার বাজে, সঙ্গে সঙ্গে পাম্প অপারেটর পাম্প চালু করে। মানে ডিসি মানে স্ক্যাডা থেকে পুশ করলে টাটা না স্যার, পুশ বাটন মানে ফিল্ডে। আচ্ছা 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 পুশ বাটনে ইয়ে করলে একটা হর্ন বাজে কি একটা ইয়ে বাজে, সাইরেন বাজে, ওকে। হয়েছে কি স্যার, ও পুশ করেছে, পুশ করার পর ওখানে রিলেতে আমাদের যে কিছু প্যানেলের ভিতরে যে রিলে থাকে না স্যার, ওই R15 করে যে রিলে থাকে, হ্যাঁ 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 আউটপুট রিলে বলো। আউটপুট ওদের রেড লাইটটা ব্লিঙ্ক করছে কিন্তু আমার হিটার বাজছে না। হুটার বাজছে না, হ্যাঁ তাহলে কি হয়েছে? রিলেটা খারাপ। তো অনেকক্ষণ দেখলাম যে দিলাম স্যার রিলেটা ঠিকই আছে, আমার পুশ বাটনের কেবল কোথায় মানে প্রবলেম, কেবল চলে গেছে। কিন্তু এটা স্যার কি করে বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে? দেখো ফার্স্ট তোমাকে সব থেকে আগে বুঝতে হবে যে রিলেকে তুমি পুশ বাটনের থেকে তুমি যখন তুমি ওখান থেকে ক্লিক করছো তখন তোমার এখানে গ্রিন লাইটে জ্বলছে আর রেড লাইটে জ্বলছে, দুটাই জ্বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তখন রেড লাইট জ্বলছে, গ্রিন জ্বলছিল না। রেড লাইট জ্বলছে, গ্রিন জ্বলছে না। আচ্ছা তুমি দেখবে রিলের উপরে একটা রিসেট মানে একটা প্রেস করার বোতাম থাকে, ওটাকে কখনো প্রেস করে দেখেছো ওটা অন হচ্ছে কিনা? মানে না রিসেট বাটনটা কোথায় থাকে স্যার? উপরে দেখবে রিলের উপরে একটা প্রেস করা যায়, প্রেস করে একটা বাটন আছে, ওই বাটনটাকে যখনই তুমি টিপবে না, যখনই তুমি টিপবে তুমি একটা কাজ করবে কি, ধরো যে ইনপুট কেবলটা আসছে ফিল্ড থেকে, যে ইনপুট কেবলটা আসছে, ঠিক আছে, ওই কেবলটা যে তোমার ডিআই বলছে, ডিআই মডিউল, ঠিক আছে, ডিআই মডিউলে যে ইনপুট কেবলটা এসে ঢুকেছে ওইটাকে প্রথমে অ্যাড্রেস থেকে খুলে বের করে দিবে, ওই দুটো তার খুলে দিলে, ঠিক আছে, যাই ভোল্টেজ আসুক না কেন ওই দুটোকে তার করে দিলে, মানে তোমার এখন ফিল্ডের সঙ্গে কোনো কানেকশন নাই,
ঠিক আছে? এবার তুমি ডিসিএস কিংবা পিএলসি স্ক্রিনে স্ক্যাডাতে যে আইটেমটা আছে ওটাকে খুলে রাখলে স্ক্রিনে, এবার তুমি আউটপুট যে লজিকটা আছে মানে ডিওটা যেটা আছে ওটাকে রিলের উপরে পিছন থেকে প্রেস করলে, ঠিক আছে? প্রেস করলে তোমার রিলেটা গ্রিন হবে, ঠিক আছে? রিলেটা কখন গ্রিন হবে একটু কাইন্ডলি বারবার বলুন। এবার রিলেটা যখনই গ্রিন হবে তোমার যে স্ক্যাডার মধ্যে যে ইন্ডিকেশনটা আছে ওটা রেড কিংবা গ্রিন হবে। আচ্ছা, এর মানে কি? এর মানে মানে আমার সিস্টেম ওপেন আছে না, এর মানে তোমার আউটপুট সার্কিটরি ইজ ওকে। When you are forcefully giving some output to the relay, it will working. It is communicating. It is communicating to your SCADA. মানে তোমার যে PLC যে আউটপুট সার্কিটরিতে আছে এটা ওকে আছে, you don't have to worry in this portion. Okay? তাহলে কি বাকি রয়ে গেল? বাকি রয়ে গেল তোমার ইনপুট সাইডটা মানে ফিল্ড সাইডটা। হ্যাঁ, ফিল্ড সাইড। ফিল্ড সাইডটা বাকি রয়ে গেল। এবার তুমি ফিল্ড সাইডে দেখার জন্য কি করবে? তুমি ইনপুট যে ডিজিটাল ইনপুটটা আছে ওখানে তুমি একটা লুপ ওয়্যার নিয়ে শর্ট করবে। আচ্ছা, যখনই তুমি ওই দুটো নাম্বার ধরো x0 আর x1 কে যখনই তুমি শর্ট করবে, একজনকে বলবে ভাই রিলের পিছনে দাঁড়া, দেখ রিলের লাইটটা গ্লো করছে কিনা, আর একজনকে বলবে ভাই তুই স্ক্যাডাতে দাঁড়া, স্ক্যাডাটা দেখ দেখছে কিনা, ঠিক আছে? ইন্ডিকেশন আসছে কি? হ্যাঁ, ইন্ডিকেশন আসছে কিনা। যখনই তুমি ইনপুটটা শর্ট করে দিলে তখনই পিছনে রিলেটা অ্যাক্টিভেট হলো আর স্ক্যাডাটা দেখালো। মানে your DI module is also okay and DO module is also okay as well as it is communicating to your SCADA. Okay, complete up to this thing. Okay, next when you are connecting the cable to the DI module, then and when you are pressing the push button, as soon as you press the push button the same fault again started. Okay, so now you disconnect the cable from input module and measure the cable. Cable টাকে measure করো না, or you check the insulation resistance, or you check the continuity of the cable. This is the basic procedure up to a junction box. Junction box যেখানে আছে এই যে ডিও সাইডে যে দুটো কেবল আছে ওটাকে তুমি কি করো ইয়ে করে দাও, টুইস্ট করে দাও, আর জাংশন বক্সে চলে গিয়ে ওখানে মাল্টিমিটার লাগিয়ে কন্টিনিউটি দেখে নাও। Is there any continuity? If you found a continuity, then this part is okay. তাহলে কোথায় দেখতে হবে? জাংশন বক্স টু দা your siren or the push button. পার্ট বাই পার্ট করে তোমাকে ট্রাবল শুট করতে হবে। ওকে ঠিক আছে? তুমি কি এই স্টেপই করেছিলে না অন্য স্টেপে করেছিলে? স্যার আমি এখন এগুলো চেক, অ্যাকচুয়ালি আমাদের পারমিশন নেই বলে আমরা চেক করি। আমি কোনো সিনিয়রকে ডাকি, তো ওই আর কি চেক করে দেখে। যেহেতু আমি কোনোদিন আমার ঠিক আইডিয়া মানে আমি লুপ কখনো পিএলসি তে লুপ কখনো করতে দেয় না, যেটা জানা নেই। এবার আইডিয়া হয়েছে? মানে একটু বুঝতে পারলে কিভাবে প্রসিডিওর মানে কিভাবে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি এগুলো কমিশন টাইমে লুপ টেস্টিং করতে করতে বেশি শিখে যাও। একদম ঠিক আছে, লুপ টেস্টিং এটাকে বলে। হ্যাঁ, এরপরে তুমি পরে যখন কোন একটা লেকচার হবে তোমাকে বলবো হোয়াট ইজ হট লুপ টেস্টিং, হোয়াট ইজ কোল্ড লুপ টেস্টিং। তুমি যেটা করছো দ্যাট ইজ দ্য কোল্ড লুপ টেস্টিং। তুমি যেটা করলে এটাকে বলে কোল্ড সিওএলডি, কোল্ড লুপ টেস্টিং। লুপ টেস্টিং কোল্ড সিওএলডি, কোল্ড লুপ টেস্টিং। ঠিক আছে, এরপর অন্য একটা লেকচারে তোমাকে বলবো আমি হট লুপ টেস্টিং কি। ঠিক আছে, তো এত দূর অবধি আজকে রাখলাম, এরপরে বললে আরো গুলি যাবে নেক্সট। ওকে স্যার, ঠিক আছে, नेक्स्ट लेक्चर है और ऑल ऑफिसर। हाँ बोलो। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो फिर आज यहीं तक रखें। थैंक यू। हाँ कौशिक और ये সৌরভ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ডেট বলে দেবো। হ্যাঁ, নেক্সট কবে কি আছে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ।